This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. যে সবথেকে বড় খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছিলাম, উপমুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারের পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করলো ইডি অফিসে কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ইডি অফিসে আসছে চিকিৎসকদের দল। রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল থেকে আসছেন চিকিৎসকরা। আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়াল। 2 ঘন্টার বেশি জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার কেজরিওয়াল। আর এর মধ্যেই আতিশি তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন যে গ্রেপ্তারের পরেও জেলে বসেই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করবেন না এবং তিনি তার দায়িত্ব সামলাবেন, এমনটা বলেছেন আতিশি। শোনাবো আপনাদের। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তাকে বের করে আনা হচ্ছে, তাকে বের করা হচ্ছে বাড়ি থেকে। সেই ছবি এক্সক্লুসিভলি টিভি 9 বাংলা এক্সক্লুসিভলি সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাকে বের করে আনা হচ্ছে। घर से निकला और ये देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अब यहाँ से जो ईडी की टीम है वो यहाँ से अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकल गई है। यहाँ से उस अरविंद केजरीवाल को मेडिकल के ले जाया जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में रखा जाएगा और अगर बात करें तो कल राजधानी कोर्ट में पेश करके अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी जाएगी। अपने चित्र के साथ समय लगेगा अरविंद केजरीवाल को लेकर। देखिए ये आखिरी गाड़ी यहाँ से निकली और पीछे पुलिस এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বিশাল কনভয় ইতিমধ্যেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বের করে আনা হয়েছে এবং তাকে সম্ভবত ইডি সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে জ্যোতির্ময় রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, ইডির সদর দপ্তরের পথে কি বিশাল কনভয়? একদমই, দেখো যে কথা আমরা বারবার ধরে জানাচ্ছিলাম, এই রাস্তা দিয়ে এই মুহূর্তে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইডির সদর দপ্তরে। ইতিমধ্যেই রাম মনোহর লোহিয়া হসপিটালের একটি মেডিকেল টিমকে তৈরি করে রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তারির পর যে কম্পালসারি প্রসিডিওর রয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তার হেলথ চেক আপ করা হবে। তারপরে আজ ইডির সদর দপ্তরে রাত কাটাতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। আগামীকাল দিল্লির রাউজ এভিনিউ কোর্ট, পিএমএলএ কোর্ট, সেই কোর্টে প্রডিউস করা হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। আম আদমি পার্টির তরফ থেকে যে দাবি করা হচ্ছিল, তারা তাকিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের দিকে। এই মুহূর্তে রাত 11টা বেজে গিয়েছে, 2 ঘন্টা সময় পেরিয়ে গিয়েছে। রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির অফিসে আবেদন যাওয়া সত্ত্বেও কোনো রকম রেসপন্স আসেনি প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে। অর্থাৎ আজ রাতে কোনো স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করে শুনানি হবে এমন কোনো সম্ভাবনা কিন্তু আপাতত নেই। সরাসরিভাবে যে খবর আমরা পাচ্ছি যে আগামীকাল পিএমএলএ কোর্টে প্রডিউস করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে, 14 দিনের হেফাজতের আবেদন জানাবে ইডি। ফলত এই মুহূর্তে সেই ছবির দিকেই আমাদের নজর থাকছে যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইডির সদর দপ্তরে এবং সেখানে সারা রাত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে, এমনটাই কিন্তু খবর। জ্যোতির্ময়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনি কি এখনো অবধি পদত্যাগ করেছেন নাকি আতিশি যেমনটা বলছিলেন, আপ নেতৃত্ব যেমনটা বলছিল যে জেলে বসেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন? দেখো এখনো পর্যন্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করার কোনো খবর নেই। পদত্যাগ করতে গেলে পরে তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের বাসভবনে যেতে হবে। যে রাস্তায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই রাস্তা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসভবন। কিন্তু যে খবর আমরা পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে কনভয় কিন্তু এগিয়ে চলেছে ইডি সদর দপ্তরের দিকে। হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তারির পর তাকে সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির অফিসে নিয়ে যাওয়ার আগে তাকে রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির আধিকারিক
সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু তা হচ্ছে না, সরাসরিভাবে গ্রেপ্তার করার পরেই ইডির সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। ফলত আগামী দিনে কিভাবে দিল্লির কুর্সি সামলানো হবে তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যে স্টেটমেন্ট অতীশী করেছেন সেটা একটি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, অর্থাৎ জেলে থেকে তিনি এই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন, কিন্তু সেটা কার্যত হয়তো সম্ভব নয়। তার কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রীকে ক্যাবিনেট বৈঠকের পর আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম নজির কি আগে কখনো হয়েছে, কখনো কি দেখেছো, বা এটা কি সাংবিধানিকভাবে সম্ভব? দেখো, আমি সেই কথাটাই জানাচ্ছি, কাঠামো কনস্টিটিউশনালি তাতে কিন্তু কোনোভাবেই জেলে বসে দিল্লি কেন কোনো জায়গারই মুখ্যমন্ত্রীর পদ সামলানো সম্ভব নয়। তার কারণ যাবতীয় কাজ সেক্ষেত্রে আটকে যাবে, তার সঙ্গে অন্য মন্ত্রীদের দেখা করতে হবে, তাকে ফাইলে সই করতে হবে, তাকে তার চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। ফলত সেই কাজ কিন্তু জেলে বসে কখনোই করা সম্ভব না। আর যদি এই পথে আম আদমি পার্টি এগোয় তাহলে কিন্তু সমস্ত কনস্টিটিউশনাল যে স্ট্রাকচার, অর্থাৎ শুধু মুখ্যমন্ত্রী নয়, সরকারের কাজকর্মের যাবতীয় দিক কিন্তু আটকে যাবে। আর ঠিক এই জায়গাতেই পদক্ষেপ করতে পারে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর, অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ সেক্ষেত্রে করতে পারেন যদি সমস্ত কাজকর্মের বাস্তবায়ন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আটকে যায়। আমরা ঠিক ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা আমরা দেখেছিলাম। সেই কারণেই কিন্তু হেমন্ত সোরেন তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পরে হেফাজতে যাওয়ার আগে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছিলেন, তিনি নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সে কাজ করলেন না। ফলত এবার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর যেমন গ্রেপ্তার হলেন, তার ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে তার জন্য যেমন আদালতে আমাদের নজর থাকবে, দিল্লির কুর্সি কি হবে লোকসভা নির্বাচনের এই আবহে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হিসেবে আমাদের সামনে এসে গেল। আমরা বারবার ধরে যে কথা বলছি, অতীশী যে দাবি করেছেন সেটা একটি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, কিন্তু কনস্টিটিউশনালি আমাদের দেশের যে স্ট্রাকচার তাতে কিন্তু তার সঠিক বাস্তবায়ন হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ফলত একটা সংকটে, সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে কিন্তু দিল্লির এই সরকার পড়ে যেতে পারে। ফলত পরবর্তী পদক্ষেপ কি হয়, লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছ থেকে আগামীকাল সকালে কি স্টেটমেন্ট আসে সেদিকে আমাদের যাবতীয় নজর থাকবে। এবং যে খবর আমরা পাচ্ছি যে শুধুমাত্র এই জায়গা নয়, যেখানে এই মুহূর্তে বিজেপির সদর দপ্তর, ঠিক তার থেকে ঢিলছড়া দূরত্বে আম আদমি পার্টির সদর দপ্তর, অর্থাৎ সেই রাস্তার নাম দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ, সেই রাস্তাতেও বিরাট পুলিশ বাহিনী সেই রাস্তা দখল নিয়েছে যাতে আম আদমি পার্টির নেতা কর্মীদের বিক্ষোভ কোনোভাবেই বিজেপির সদর দপ্তরে আছড়ে পড়তে না পারে। এবং রাউজ এভিনিউ কোর্ট থেকে ইডি সদর দপ্তর পর্যন্ত সেখানেও বিরাট পুলিশি বন্দোবস্ত করা হচ্ছে বলে আমরা দিল্লি পুলিশের হেডকোয়ার্টার থেকে খবর পাচ্ছি। অর্থাৎ আগামীকাল যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হবে একেবারে যে ইডির সদর দপ্তর, সেখান থেকে রাউজ এভিনিউ কোর্টে তাকে ফিজিক্যালি প্রডিউস করা হবে, সেই সময়কালটাও কিন্তু জ্যোতিমার সঙ্গে থাকো, জ্যোতিমার সঙ্গে থাকো, তোমার কাছে আসছি। আরো একজন প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তার থেকে আপডেট নেব। न्यू दिल्ली डीसीपी खुद मौजूद है, इसके अलावा एडिशनल सीपी मौजूद है नई दिल्ली जिले के, साथ ही अंदर ईडी के जो जो इससे जुड़े हुए हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। सबसे पहले इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर अरविंद केजरीवाल को लाने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट यहाँ पर बाकायदा आरएमएल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ईडी हेडक्वार्टर पहुँचेगी, यहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उनसे फौरी तौर पर पूछताछ शुरू होगी। उनसे एक्साइज घोटाले को लेकर जो तमाम सवाल हैं जो उनके आवास पर उनसे किए गए, जिनका स्पष्ट जवाब नहीं मिला, वो तमाम सवाल दोबारा से उनसे यहाँ पूछे जाएंगे। बाकायदा रिटर्न स्टेटमेंट उनका लिया जाएगा। उन सवालों को ना सिर्फ लिखित बल्कि उनकी वीडियोग्राफी भी यहाँ पर की जाएगी, जो हमारे सोर्सेज इस वक्त हमें बता रहे हैं। और पूरी रात इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर अरविंद केजरीवाल को अपनी बितानी पड़ेगी। सुबह फिर जब उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए की कोर्ट में, उससे पहले भी उनका बाकायदा यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट किया जाएगा फिर से आरएमएल के डॉक्टर्स के द्वारा, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो सोर्सेज हमारे बता रहे कि कम से कम 7 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से कल अरविंद केजरीवाल की मांगी जाएगी कोर्ट से, और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है, जो पूछताछ है, वो अरविंद केजरीवाल से शुरू की जाएगी। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं इससे आगे के बारे में सोच चुके हैं। एक तरीके से जो पूरी रणनीति है वो बना ली गई है कि जो इस केस के आरोपी हैं, बाकी जो इस वक्त या तो जेल के अंदर बंद है या फिर जमानत पर है, उन सभी केस आमने सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। उनमें से बताया जा रहा है कि सी अरविंद है, समीर महिंद्रू है, इसके अलावा के कविता है। तो ऐसे केस से जुड़े जो आरोपी हैं उन सबसे अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सब 7 बजे ना, 7 बजे
দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেই ছবি। যে কোনো মুহূর্তে ইডি সদর দপ্তরে পৌঁছতে চলেছে এই বিশাল কনভয়, অর্থাৎ অরবিন্দ কেজরিওয়াল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছতে চলেছেন। তাকে নিয়ে সেই কনভয় পৌঁছতে চলেছে ইডির সদর দপ্তরে। আর সমস্ত মুহূর্তের সমস্ত আপডেট আমরা দিচ্ছি টিভি9 বাংলা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগে সরব আপ। দিল্লি থেকে নন স্টপ কভারেজ টিভি9 बांग्ला की कई सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये मैसेज दे दिया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही मुख्यमंत्री जी की जो याचिका हमने दायर की है उसको सुने और दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दें। आगे सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अब इन्फेक्चुअस हो चुकी है जो आपकी याचिका है, जो गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पिटीशन थे, ये गलत खबर चलाई जा रही है कि इन्फेक्चुअस हो गई है। नहीं, हमारी 2 अलग अलग प्रेयर थी कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी इमिनेंट है, होने वाली है, लिहाजा उसको रोका जाए। और यदि इस दौरान गिरफ्तारी हो जाती है तो उस गिरफ्तारी के ऊपर भी कोर्ट रोक लगाए, तो वो इन्फेक्चुअस नहीं है। दूसरी बात, सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कानूनन मुमकिन है ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउ है सर? मैनुअल के काफी नियम है जिसमें ये पॉसिबल है। मीटिंग कैसे करेंगे आप, कैबिनेट कैसे करेंगे? सब कैसे कर पाएंगे आप लोग? कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें, वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कोर्ट के सामने क्या सरकार चला सके, कोर्ट के सामने रखेंगे, कोई बाधा ना है उसमें। देखिए, जो भी हमारी लीगल टीम हमें बोलेगी उसके ऊपर फैसला लेंगे। बट हमें लगता है, जितनी जानकारों से हमने सलाह की है,
कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आपको लगता है कि पूरी इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, दिल्ली प्रदेश के हों, ऑल इंडिया कांग्रेस के हों, चाहे अभी समाजवादी पार्टी से हों अखिलेश यादव जी, राहुल जी का भी ट्वीट है, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, सब तरीके के लोगों ने जो विपक्ष की आवाज़ हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी पे गुस्सा जताया है। और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पे उतर आई है और अपने हार के डर से, आम चुनाव में केंद्र सरकार हार के डर से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। जाहिर सी बात है बातचीत होगी। ये जो रास्ता, ये देखिए, ये ठीक सामने ईडी हेडक्वार्टर का गेट है और इस गेट तक अब जाने पर पूरे तरीके से मनाही कर दी गई है। ठीक ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है, बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। और अब से कुछ देर बाद, यानी कि मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचने वाले हैं और उसकी तैयारी यहाँ दिल्ली पुलिस ने लगभग पूरी कर ली है। दिल्ली पुलिस के तीनों अधिकारी, जिले के तीनों अधिकारी इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। जो जांच टीम है वो अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचेगी। ईडी हेडक्वार्टर के आसपास के जितने भी रास्ते हैं सभी पर बैरिकेटिंग कर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी बता रहे थे। और ठीक ईडी हेडक्वार्टर के सामने, यानी कि जो उनका मुख्य द्वार है ईडी हेडक्वार्टर के सामने की सिक्योरिटी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में। অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি তিনিও জানাচ্ছিলেন, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় থেকে আমরা জানতে পারছিলাম যে আগামীকাল तादाद में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी और उनकी सुरक्षा के घेरे में इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं हूटर बजाते हुए इस वक्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ये गाड़ियां दाखिल हो रही हैं और एक एक करके अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी आ सकते हैं। कुछ पुलिस की गाड़ियां जरूर आई है, यह अंदेशा था कि संभवतः अरविंद केजरीवाल का यह काफिला होगा, लेकिन नहीं अरविंद केजरीवाल अभी नहीं आए हैं। कई बड़े ऑफिशियल्स, क्योंकि लंबा काफिला था, ये गफलत हुई कि शायद अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, लेकिन अभी भी गहमा गहमी तेज है। इसी रास्ते से उनको आना है, इन्हीं बैरियर्स के बीच आना है। पुलिस की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पूरे रास्ते को खाली कराया गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों को आने की इजाजत है। और बड़ी तादाद में वो देखिए जो नीली बत्ती लगी गाड़ियां हैं वो किस तरह से अब इस पूरे इलाके को घेर रही है और पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। वायरलेस पर एक एक इंफॉर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहां तक काफिला पहुंचा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली क्या? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद है और आज की रात अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर के अंदर गुजारनी पड़ेगी। ये देखिए तस्वीरें, तमाम आला अधिकारी इस वक्त दिल्ली पुलिस के ईडी हेडक्वार्टर के सामने पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल भी इसी हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जिले के जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जल्द अरविंद केजरीवाल को भी इसी ईडी हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। तो मतलब साफ है कि जो गहमा गहमी है, जो हलचल है, वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के आसपास पूरे तरीके से बढ़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद होंगे, जहां आगे की तस्वीर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। इस वक्त जितेंद्र हम दिखा रहे हैं तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की, इसी इनोवा में अरविंद केजरीवाल थे और यहां से गाड़ी এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সরাসরি যে ছবি দেখাচ্ছি, এক্সক্লুসিভলি যে ছবি দেখাচ্ছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল পৌঁছে গেছেন ইডি সদর দপ্তরে। সরাসরি সবার আগে টিভি9 বাংলায় যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ইডি সদর দপ্তরে পৌঁছে গেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেই ছবিটা, সেই মুহূর্তের ছবিটা আরো একবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। টিভি9 বাংলা এক্সক্লুসিভলি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। 2 ঘন্টার বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আজ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে, তারপর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়, তারপর দীর্ঘ সময় পর তাকে আনা হলো এই মুহূর্তে ইডি সদর দপ্তরে।
দেখাচ্ছি সেই মুহূর্তের ছবিটা আরো একবার দেখাচ্ছি টিভি9 বাংলা এক্সক্লুসিভলি। যে মুহূর্তে প্রবেশ করলো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়ি পৌঁছলো ইডির সদর দপ্তরে। বিশাল একটা কনভয় এসে পৌঁছেছে ইতিমধ্যেই ইডির সদর দপ্তরে। সেই মুহূর্তের ছবিটা আরো একবার বারবার করে টিভি9 বাংলা এক্সক্লুসিভলি দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য দেখাচ্ছি সেই ছবিটা। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আনা হয়েছে ইডির সদর দপ্তরে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় 9 বার তলব করা হয় তাকে, অবশেষে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে এই মুহূর্তে আনা হয়েছে ইডির সদর দপ্তরে। আজকের রাত্রে তাকে ইডির সদর দপ্তরেই কাটাতে হবে। আগামীকাল শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতারের পর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করলো ইডি। এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছে ইডির সদর দপ্তরে। এই খবরই থাকবো আমরা, আরো আপডেট আপনাদেরকে দেবো, তবে একটা ব্রেকের পর আরো এই খবরের আপডেট দেবো, সঙ্গে থাকুন।